Hello, Namaste bachcho. So this is the fourth part of the NCERT explanation. As I've explained the earlier three parts, you can go in my playlist and just go through those NCERT explanation, which is very much important because NCERT जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, that is the Bible and you must read, go through this. Okay. So sexual reproduction in flowering plant, that is our today's topic. So first of all, let us revise this portion. This portion, okay. Able to see all of you? Yes. Okay, so female part, the stigma is that this is the female part. Okay, this one is the female part, then this one is the style part. Okay, then this one is the ovary part, isn't it? This whole part we call it as stigma, style, and ovary. We call it as female part, that is pistil, or otherwise we call it as carpel. किसी किसी बुक में आपको carpel भी लिखा मिलेगा इस तरह से. यहाँ पे carpel or either pistil, that is the female part. Okay, then after that the male part. When we are going to the male part, that is the stamen part. So in the stamen part there are two parts, anther and then next is the filament, isn't it? All of you know that. So anther, this portion we call it as anther, and this filamentous structure, this stalk like structure, we call it as filament. Other than that, the other part like the colorful part we call it as petals. This particular petals we call it as, okay. Then after that the sepals we call it as, this one is sepals. And here this particular portion, as it is not labeled, not required if it is not labeled in your NCERT, but this one we call it as pedicel. This one we call it as pedicel. Okay. Okay, so this is the part of the flower. एक आउटलाइन चाहिए मुझे जो मैंने दिया आपको, और मैं बार बार कहती, मैंने बाकी में भी सब में अपना पीडीएफ डाल दिया है, तो आप लोग एक बार सारा पीडीएफ के थ्रू आप उसके और अच्छे से एक्सप्लेनेशंस को देख लेना. ठीक है, चलो इसको हम लोग बाद में करते हैं. इसको मैं अभी जूम इन करके और मैं फिर इसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ख़त्म कर दूँ कम से कम. ओके, एक मिनट बच्चों. Okay, so reproductive part of the angiosperm. When we are talking about angiosperm, students, so angiosperms means what? Angiosperms, we call it as flowering plants. The other name for angiosperm, flowering plant, is angiosperm, isn't it? They are located in the flowers. Obviously, the reproductive part, that is with the flower, and the non-reproductive part, the other parts like, you know that, leaves, stem, roots, and all. So different parts of flowers, sepals है, petals है, stamens है, pistil है, ये सब है ना. स्टेमन एंड पिस्टल ये सब मैंने अभी आपको बताया. जस्ट दोज सिमिलर थिंग दे हैव रिटन ओवर हियर. आप इसको प्लीज एक बार पढ़ोगे. व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी पेटल्स एंड सेपल्स सर. अभी यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया आप लोग से ना. तो जैसे एनसीईआरटी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों, तो उसको आंसर आपको करना चाहिए. आपको उसका आंसर को समझना चाहिए. आइदर आपके टीचर एक्सप्लेन करे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट कुड बी द फंक्शंस, फंक्शंस कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर. So function of petals, you know that petals are the colorful part of the flower. So different insect they do the pollination with the help of this colorful part, that is petals. वो जितना भी pollination होगा वो petals अगर colorful नहीं होगा तो possible ही नहीं है. ठीक है. तो सेपल्स, सेपल्स में जो है आपका बच्चों, सेपल्स इसका क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है इस पूरे पार्ट को, इस पूरे फ्लावर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अच्छा, फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल. अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन का ही है, आपको सिर्फ एग्जांपल ही है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आपका क्या है, आप प्लीज याद करेंगे. पपाया है, वाटरमेलन है. व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमेंस और पिस्टल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमेन, और जैसे कि द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल आइदर ऑफ द सेक्स इज प्रेजेंट इन दैट, दैट आइदर स्टेमेन और पिस्टल. अच्छा, फिर बार या फिर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल में एग्जांपल देख लेना प्लीज आप लोग, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. तो व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टल, जब इसमें दोनों पार्ट रहेगा आपका, जैसे ये आपका हिबिस्कस का ही दिया है ना डायग्राम, तो आप ही बताओ ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है. ऑब्वियसली ये बाइसेक्सुअल है ना, इसमें दोनों पार्ट दिख रहा है आपको. फीमेल पार्ट भी दिख रहा है बच्चों, और इधर आपको मेल पार्ट भी दिख रहा है. ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए. होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. टेलीग्राम पे मेरा लिंक भी है, मैं वो भी डाल दूंगी. टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछिए मुझसे. ठीक है. ओके, सो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया. अभी आप आ जाओ इस पे. ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है. ठीक है. डबल फर्टिलाइजेशन का जब हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको इसका पहले स्ट्रक्चर समझाऊंगी पूरा अच्छे से. फिर मैं डबल फर्टिलाइजेशन का अपने पीडीएफ को ओपन करके मैं उसका दोनों डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. उसके अलावा मैं ट्रिपल फ्यूजन एक्सप्लेन करूंगी. तो जस्ट इस वीडियो के बाद आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जाओगे तो आपको वो देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, इस वीडियो के लिए काफ़ी है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.